Hello everyone, I am Ritika Zuskar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Data Structure and Algorithm, we discuss about Unit 2. So Unit 2 is based on searching and sorting where we already discuss about the linear search and binary search technique with the C programming implementation. The second thing is the sorting, okay? So there are different sorting techniques like bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort. Okay, so this part we already discussed in previous videos. So you can check my previous videos. I will share the link of this sorting techniques in the description box. Okay. So in this video we discuss about the shell sorting with example and the implementation in the C programming. So let us discuss here what is the shell sort. So shell sort is a highly efficient sorting algorithm and it is based on the insertion sort algorithm. Okay. So हम फर्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे सेल सॉर्ट टेक्निक यूज करेंगे जो भी हमारे पास एरे होगा और सॉर्ट होने के बाद शेल सॉर्ट टेक्निक अप्लाई करने के बाद हम नेक्स्ट वाला पार्ट क्या करेंगे इंसर्शन सॉर्ट से उसको सॉर्ट कर सकते हैं. So this algorithm avoid the large shifts as in the case of insertion sort. हर टाइम हमें अगर insertion sort यूज करते हैं so हर टाइम हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है. ओके अगर मेरे पास 1 2 3 5 6 ऐसा एलिमेंट है so जो भी फोर्थ वाला एलिमेंट होगा उसको हमें हर टाइम शिफ्ट करना पड़ता है. 5 के साथ कंपेयर होगा देन 4 के साथ सॉरी 6 के साथ कंपेयर होगा देन 5 के साथ कंपेयर होगा देन 3 के साथ कंपेयर होगा. 3 को कंपेयर करने के बाद वो 3 से अगर ग्रेटर नंबर आता है सो 3 के लेफ्ट हैंड साइड वो प्लेस हो जाएगा. ओके फोर्थ पोजीशन पे. ठीक है. सो हर टाइम हमें इंसर्शन सॉर्ट के लिए शिफ्टिंग करनी पड़ती है. ओके सो शेल सॉर्ट इज द जनरलाइजेशन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट which overcome the drawbacks of insertion sort by comparing the elements separated by a gap of several positions. Okay so जो भी drawbacks है insertion sort के अंदर उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं शेल सॉर्ट यूज कर सकते हैं. तो शेल सॉर्ट के अंदर हमें हर एक एलिमेंट के साथ शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती है. यहाँ पे हम यूज करेंगे गैप which is also called as an interval. So by using this interval we can easily sort our elements. So normally in the insertion sort at a time elements can be moved ahead by one position only. Okay so to move an element to a far away position many movements are required that increases the algorithm's execution time. But if we are using the shell sort overcomes this drawback of insertion sort. So it allows the movement and swapping of far away elements as well. So this algorithm uses the insertion sort on widely separated elements. So first to sort them and then sorts the less widely spaced elements. So this spacing is termed as an interval. So this algorithm first sort the elements that are far away from each element and then it subsequently reduces the gap between them. So this gap is called as a interval. So this interval is calculated based on this Knuth formula. So Knuth formula is equal to h into 3 plus 1. So here h is the interval with the initial value 1. So 1 into 3 plus 1 4. So h की value मिल गई 4. Then 4 into 3 plus 1 13. Okay like this. So algorithm, so this is a shell sort algorithm. First is a shell sort. We are having the array size A, total array is A and the size is a n. For interval, so we have to use here gap which is also called as an interval is equal to n by 2. So if I am considering the size is a 6, array size is a 6. So interval is what? 6 divided by 2 that is 3. So 3 is greater than 0, condition is true. If this condition is true then go to the next step for loop. So I is equal to 3. So interval is what here 3.
So I am considering I is equal to 3 here. 3 is less than 6, condition true. If the condition is true, then enter to this loop. So here I am considering one temporary, that is temp is equal to a of I is what here 3. So array of 3 कौन सा होगा हमारा, इंडेक्स पोजीशन जिसकी 3 है वो हम क्या करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे. ओके, टेम्पररी वेरिएबल के स्टोर करने के बाद अगेन यहाँ पे एक फॉर लूप यूज किया है जिसके अंदर जो हमारा i इक्वल टू 3 था उसको हमने क्या किया, j इक्वल टू 3 किया. ओके, j भी हमारा क्या है 3 है और i भी हमारा क्या है 3 है. सो अगेन j इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरवल 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सो j कितना है हमारे पास 3 और इंटरवल भी कितना है हमारे पास 3. यहाँ पे इक्वल दिया है, सो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. सो यहाँ पे क्या यूज किया है, एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर मीन्स व्हाट, एंड ऑपरेटर कब यूज करते हैं, इन विच केस. तो यहाँ पे देखो एक फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ये वाली और सेकंड कंडीशन है एरे ऑफ j माइनस 1 इज ग्रेटर देन 10. सो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर इनमें से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड केस के अंदर. एंड ऑपरेटर क्या करता है, कौन से केसेस के अंदर वो एग्जीक्यूट करता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों फॉल्स होनी चाहिए या एक फॉल्स एक ट्रू होना चाहिए. यस, ट्रूथ टेबल पता है आप लोगों को, और का एंड फॉर लूप कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब. ओके, सो यहाँ पे देखो एक कंडीशन दी है i इज लेस देन n, ये कंडीशन ट्रू आती है तभी वो फॉर लूप के अंदर एंटर करेगा. सो सिमिलरली यहाँ पे दो कंडीशंस दिए हैं. ओके, एक तो j इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरवल एंड एरे ऑफ j माइनस 1 j माइनस इंटरवल इज ग्रेटर देन 10. सो ये दोनों कंडीशन के बीच में क्या यूज किया, एंड. सो मीन्स जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तभी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज किया. एंड क्या करता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू होता है. करेक्ट, यस और नो. ठीक है, सो ये वाले केस में j कितना है हमारे पास 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एरे ऑफ j कितना है 3 माइनस इंटरवल कितना है हमारे पास 3. सो एरे ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 10. सो एरे ऑफ 0 जो भी होगी एरे की वैल्यू उसको हम चेक करेंगे टेम्पररी वेरिएबल के जो हमने स्टोर किया है. अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती है सो हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरे ऑफ 0 है उसको j के अंदर स्टोर करना है और जो टेम्प की वैल्यू है उसको हमें एरे ऑफ j के अंदर स्टोर करना है. ओके, इसको हम ये कंसिडर करेंगे और इसको हम ये कंसिडर करेंगे. ओके, सो मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ये वाला शेल सॉर्ट प्रोग्राम. सो इसमें क्या यूज किया जाता है, गैप यूज किया जाता है. ठीक है, सो ये हमारे पास एरे है गिवन 33 31 48 12 17 25 42. ओके, सो हम क्या करेंगे, इसका गैप फाइंड आउट करेंगे. सो कैसे फाइंड आउट करते हैं गैप, इसको इंटरवल इज इक्वल टू n बाई 2. सो n कितना है हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाई 2 इज 4. सो यहाँ पे गैप क्या हो जाएगा, इंटरवल दैट इज 4. तो 33 31 40 और 8 का एक इंटरवल है, 12 17 25 42 का एक अनदर इंटरवल है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, शेल सॉर्ट के अंदर ये जो फर्स्ट इंटरवल है उसका फर्स्ट नंबर और जो सेकंड इंटरवल है उसका फर्स्ट नंबर दैट इज 33 एंड 12, इसको हम यूज करेंगे. देन अगेन 31 17 40 25 8 एंड 42. सो इसका पेयर करेंगे हम. ठीक है, पेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही बस स्वैप करना है हमें. 33 और 12 को स्वैप करेंगे, 31 17 को. कंडीशन क्या होगी, 33 इज ग्रेटर देन 17, condition is true, so we have to swap here 12 and 33. 31 is greater than 17, condition is true, 17 and 31 को हमने यहाँ पे स्वैप किया है.
40 इज ग्रेटर देन 25, कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, 40 और 25 को स्वैप किया है। देन 8 इज ग्रेटर देन 42, कंडीशन इज नॉट ट्रू। सो एज इट इज हमने 8 को यहाँ पे रखा है 4th पोजीशन के ऊपर और 42 को हमने रखा है 8th पोजीशन के ऊपर एज इट इज। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होना चाहिए, इंटरवल को हम अगेन डिवाइड करेंगे 2 से। सो पहले हमारा इंटरवल कितना था, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे 2 का हम डिफरेंस करेंगे। तो ये जो 12, 17, 25, 8 ये फर्स्ट इंटरवल था, इसको अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट क्या हो जाएगा, 12 और 17 का एक पार्ट है, 25 और 8 अनदर इंटरवल है, 33, 31 एक अनदर इंटरवल है और 40 और 42 एक अनदर इंटरवल है। सो ये जो इंटरवल है फर्स्ट, देन सेकेंड मीन्स 12, 25, 33, 40 इसका एक इंटरवल होगा, मीन्स इसका ग्रुप होगा। 17, 8, 31, 42 इसका एक अनदर ग्रुप होगा। ठीक है, लाइक दिस। सो इसमें से हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे और इसमें से हम अलग से सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 12, 25, 33, 40 एज इट इज रहेगा और ये वाले केस में से क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 17 यहाँ पे आएगा, 31 एज इट इज एंड 42 एज इट इज। ओके, सो ये मिलेगा हमें शेल सॉर्ट से एरे। सो ये जो एरे है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। ओके, जो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता था, जो भी टोटल लेफ्ट हैंड साइड है वो सारी हमारे सॉर्टिंग में आनी चाहिए और राइट हैंड साइड जो है वो पूरी अनसॉर्टेड आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इंसर्शन सॉर्ट यूज किया है, इसके अंदर पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में है, राइट हैंड साइड अनसॉर्टिंग ऑर्डर में है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल एक डिस्कस किया था, 12, 31 ओके कंपेयर करेंगे, देन 12 हमारा सॉर्टिंग है एज इट इज रहेगा, देन 31, 25 को कंपेयर करेंगे। सो इसमें से 25, 31 और 25 को कंपेयर करेंगे। ओके, सो ये होगा हमारा 25 इधर, 31 इधर, देन 31 और 8 को कंपेयर करेंगे। सो 8 ये वाली साइड आएगा, 31 ये वाली साइड आएगा। ओके, लाइक दिस। सेम हम रिमेनिंग जो पार्ट है शेल सॉर्ट का वो हम इंसर्शन सॉर्ट से सॉल्व करेंगे। ज्यादा हमें, अगर ये वाला एग्जांपल में डायरेक्टली कंसीडर करती बाय यूजिंग द इंसर्शन सॉर्ट, तो हमें कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, 31, 33 आएगा, देन 33, 40 एज इट इज रहेगा, देन 8 और 40 आएगा, देन 12 और 40 आएगा, देन 17 एंड 40 आएगा, देन 25 एंड 40। ओके, सो अगेन हमें हर टाइम उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। बट इफ यू आर यूजिंग द शेल सॉर्ट हियर एंड शेल सॉर्ट कंप्लीट होने के बाद अगर हम इसके ऊपर इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो ज्यादा शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीन्स ये 33 को हमें यहाँ पे लाना है। ओके, सो ये ऑलरेडी ये वाला 33 तो ऑलरेडी ये वाले पोजीशन पे है, सो ज्यादा शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। अभी 8 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है। ओके, सो अगर इस टाइप का है सो इसको कितनी बार हमें यहाँ ये वाली साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, 8 को यहाँ पे, देन सेकंड पोजीशन, देन फर्स्ट पोजीशन। 12 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 8 की, देन 40, देन 31, देन 33। सो we required here more number of shifting, but if you are using directly the shell sort, so after the shell sort हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 42 एज इट इज रहेगा, 40 को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीन्स शिफ्टिंग का जो पार्ट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे 8 को बस हम 1 टाइम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 17 को भी बस 1 टाइम में शिफ्ट करेंगे। क्लियर, सो यहाँ पे देखो 12 और 8 को कंपेयर करेंगे, 8 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, देन 12 और 25 को कंपेयर करेंगे, वो दोनों एज इट इज रहेंगे। 25 और 17 को कंपेयर करेंगे, 17 यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे आएगा। देखिए 25 और 30 को कंपेयर करेंगे एज इट इज, 30 और 31 को कंपेयर करेंगे, 31 यहाँ पे आएगा, 33 यहाँ पे, 33 को कंपेयर करेंगे 40 के साथ एज इट इज, 40 को कंपेयर करेंगे 42 के साथ एज इट इज। सो यहाँ पे ज्यादा शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। थैंक यू।